I would now like to invite our next speaker, Dr. Neema Sitapara. Dr. Neema is a pediatrician and adolescent specialist. She practices in Rajnagar. She's also a clinical hypnotherapist and counselor. And she's going to discuss about functional pains in children and adolescents. Ma'am, please. Yes. Good evening, everybody. Hope I am properly audible. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. So, first of all, I am honored to be on this platform. Uh, it's been my experience since 5 years working with clinical hypnosis in children. I have been practicing since 20 years as a pediatrician, as an adolescent specialist, and as a clinical hypnotherapist since 5 years. So today I would like to share my little experience about working with functional pains in children and use of hypnosis in certain patients with functional pains. So during my this talk of 15-20 minutes, I'll just give an overview of functional pains and how we select the techniques and how we go with the hypnosis in children with functional pains. So to begin with, what actually is a functional pain? Any pain or added disability without any structural etiology is known as functional pain. So we can say it is a dis-ease. Dis-ease means there is loss of comfort. A dis-ease without any diagnosis. उसमें कोई आपको diagnosis नहीं मिलेगा, लेकिन pain है, पीड़ा है, मगर रोग नहीं है. So such pains are felt in 10 to 15% of school going children. 5 to 15 years के बच्चों में ऐसा pains दिखता है. To understand functional pains, we can divide pains into two main areas. सोमैटिक पेन्स और ऑर्गेनिक पेन्स, जिसमें बॉडी में कोई इंजरी है, इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से जो पेन आता है, जैसे अपेंडिसाइटिस का पेन है, इंटेस्टिनल परफोरेशन है, हिपेटाइटिस है, all these pains are due to trauma or inflammation in the body organs, and these pains are known as organic pains. Other pains where we don't find any diagnosis, they are known as behavioral or functional pains. So body symptoms are there without any problem in the body. Roughly, we can define all these pains as functional pains. How to differentiate? उनकी characteristics क्या होती है? तो these pains are very vague. मतलब आप बच्चे को बोलेंगे कहाँ पे दुखता है, तो वो ऐसे जनरलाइज बोलेगा, पूरे सर में दुखता है, पूरे हाथ में दुखता है. they cannot pinpoint exactly where the pain is. They do not associate with the clinical signs. जैसे पेट में बहुत दुखता है, पेरेंट्स बोलते हैं पूरा गिर जाता है, लेट जाता है, रोल करता है बेड पे, but when you examine the child, you don't get any signs of inflammation और एक्यूट एब्डोमन लाइक गार्डिंग रिजिडिटी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको क्लिनिकली एसोसिएट नहीं होगा कोई इलनेस के साथ. दिस पेन्स आर यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग. बहुत दुखा, 15-20 मिनट के बाद जैसे कुछ है ही नहीं, बाहर खेलने चला गया. दिस पेन्स आर नॉट ड्यूरिंग स्लीप. एक बार सो जाता है, फिर कभी भी उसकी फरियाद नहीं होती है, वापस उठता है, तब वो पेन शुरू हो जाता है. और there may be some association with specific place, time or person, like morning pains. Children with school anxiety, school refusal, they get morning pain. सुबह 7 बजे से पेन होता है, जैसे ही वैन चली जाती है, बस चली जाती है, 9-10 बजे के बाद वो पेन गायब हो जाता है. So there are certain associations. We can find out with this characteristics कि this pain is totally functional. What are the reasons behind this pains? In short, in one sentence, we can say that any functional pain is emotional, social, or psychological disharmony within that person. The pain is an external symptom of that person feeling uncomfortable in his emotions. The pain is the result of the
pain in the emotions. And these pains are very subjective. कैसे subjective होते हैं? It depends on the perception of the child. Perception मतलब कितना संवेदनशील है child. Certain children, even if they are having real trauma, they don't express the pain very easily. And so many children, even if they have a tribal issue, they loudly express the pains. So there is difference in perception. There is difference in level of tolerance. Tolerance increases when there is anxiety and reduces when there is anxiety and apprehension, and tolerance increases when there is excitement. पिकनिक है तो पैर का दर्द रियल में है तो भी नहीं होगा, एग्जाम है तो वो दर्द बढ़ जाएगा. So it varies with the tolerance level, and also it depends on the reactions. पेरेंट्स की, फैमिली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है. इफ द पेरेंट्स आर वेरी अटेंटिव, ओवर प्रोटेक्टिव, बच्चा कुछ चिल्लाया और क्या हो गया, चलो जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको कोई बड़ी मुसीबत है, बड़ा प्रॉब्लम है, द पेन विल इंक्रीज. सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द रिलेटिव्स एंड द पेरेंट्स दैट actually the child is showing the pain, but the severity depends on all these three factors. पेरेंट्स की कंसर्न मेन क्या होती है? आप डॉक्टर साहब बोलते हो कि कुछ है नहीं, तो क्या हमारा बच्चा फेक कर रहा है, झूठ बोल रहा है? वो तो ऐसा है नहीं. नहीं, आपका बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है. ही इज एक्सपीरियंसिंग पेन, बट द रूट ऑफ दैट पेन इज नॉट इनटू एनी बॉडी और स्ट्रक्चरल डिजीज. ये हमको क्लियर करना है. बच्चे को पीड़ा हो रही है, इट इज हैपनिंग टू द चाइल्ड. द चाइल्ड इज नॉट डूइंग इट. वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो फील कर रहा है, लेकिन उसका रीजन आपको कोई डायग्नोसिस में, कोई रिपोर्ट्स में नहीं आएगा. उसका दूसरा कंसर्न ये है कि इज दिस इलनेस सीरियस, मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ है नहीं, कल रात को कुछ हो गया तो. और दे माइट बी हैविंग सम नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द फैमिली, कि हमारे फुआ जी के बच्चे को भी बोला था कि कुछ नहीं है, 2 दिन के बाद उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा. तो दैट पेरेंटल एंजाइटी विल ऑल्सो एड टू द पेन इन द चाइल्ड. और फिर लास्ट क्वेश्चन ये होता है, आप बोल रहे हैं कुछ है नहीं, मतलब क्या इसकी कोई दवाई नहीं करानी है? अगेन वी हैव टू टेल द पेरेंट्स, दवाई उसकी मेडिसिन में नहीं आएगी, गोली या सिरप में नहीं आएगी. ही नीड्स हेल्प इन द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी. मतलब उसको मदद की जरूरत तो है, लेकिन आप जैसे डिमांड कर रहे हो कि गोली लिख दो, वो इस तरह से नहीं आएगी. And then we have to explain to the parents about the mind-body interface and how the stress response in children are different. जो चीजें हमको बहुत सिंपल लगती है, वो चीजें उनको बहुत ट्रॉमेटिक लगती होगी. चेंज ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ टीचर, कोई सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, तो ये सब चीजें बच्चों को पेन करा सकती है. ये पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी है. फिर आती है चीज, how parents can change the pain response, that is behavior modification. उनके रिएक्शंस को बदल के वो बच्चे को हेल्प करे कि उसका पेन कम हो. फर्स्ट, नॉट ओवर रिएक्टिंग. मतलब जैसे पापा ऑफिस से घर आ गए, बच्चे ने बोला बहुत सर दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, डोंट ओवर रिएक्ट, रिमेन न्यूट्रल. उसको बोलो 5 मिनट आराम कर ले, उसको बोलो वापस से उसका होमवर्क है, जो भी एक्टिविटी है वो चालू रखनी है. ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ फैमिली थेरापी. दिस अप्रोच शुड बी फ्रॉम ऑल द फैमिली मेंबर्स. मतलब अगर मदर ने किया लेकिन दादा दादी आ गए और उसको एकदम से पैम्पर करने लगे, तो ये काम नहीं करेगा. और फिर पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि हाउ थ्रू रिलैक्सेशन एंड पेन मैनेजमेंट टेक्निक वी कैन हेल्प द चाइल्ड. क्योंकि एडल्ट में तो यही होता है कि सीधा आप क्लाइंट से बात करो, एडल्ट से बात करो, लेकिन बच्चों में द फर्स्ट बैरियर वी हैव टू क्रॉस इज ऑफ द पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स कन्विंस होते हैं, उनके गले में ये बात उतरती है कि इस तरह का पेन भी होता है और उसकी मैनेजमेंट अलग से होती है, तभी हम जाके बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक टाइम विद द पेरेंट्स. और फिर क्या उसकी रीजन है इस पेन के पीछे, वो साइकोसोशियल स्क्रीनिंग. पेरेंट्स से भी इंटरव्यू करके पूछ के
और बच्चे से भी थोड़ा रेपो बिल्ड करके अकेले में उससे बात करनी है। हैज देयर बीन एनी रिसेंट ट्रॉमा, घर में किसी की डेथ हुई है, किसी की इलनेस है, कोई सेपरेशन, मैरिटल डिसहार्मनी बिटवीन पेरेंट्स, और या तो फिर चेंज इन स्कूल है, कोई घर का चेंज हुआ है, अड़ोस पड़ोस में चेंज हुआ है, बच्चे के फ्रेंड्स नहीं है, कोई ओवर शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज है। आजकल पेरेंट्स को ये है कि यहाँ के क्लास करके यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चा पूरा दिन भाग दौड़ में रहता है, तो ओवर शेड्यूलिंग से भी हो सकता है। कोई फोर्स्ड एक्टिविटी है, हाँ डांस में तो तुमको जाना ही है, या ट्यूशंस है, कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, मैथ्स में डिफिकल्टी है, तो ये सब चीजें भी उसको इमोशनल प्रेशर क्रिएट करके पेन बढ़ा सकती है। And then we have, when we are dealing with adolescents, added issues about screen use, cyberbullying, crushes, ये सब भी इंक्वायर करने हैं, क्योंकि unless and until we pinpoint the exact root cause और कहाँ पे उसको इमोशनल कंफर्ट लाना है, वो नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो ऊपर ऊपर से पेन का कोई मैनेजमेंट नहीं होगा। Usually any pain serves some psychological purpose। तो सेकंड हमारा जो है ये स्टेप है कि क्या पर्पस इस बच्चे में सर्व हो रहा है इस पेन से। देयर मे बी पेन मे बी देयर टू गेट आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ गिल्ट। अगर बच्चे को ये लगता है कि मैंने कुछ खराब काम कर दिया है, कोई फोन वीडियो देख लिया है, कुछ ऐसा कर लिया है, तो अगर फैमिली में ये बहुत ही धार्मिक ये है कि अगर आप कुछ खराब काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, गॉड विल पनिश यू। और अगर किसी की सफरिंग के लिए, इलनेस के लिए अगर हमारा अप्रोच ये है कि वो भगवान ने उसको पनिशमेंट दिया है इसलिए वो बीमार है, तो बच्चे के दिमाग में ये बिलीफ होगी कि आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई शुड गेट अ सफरिंग और आई शुड गेट अ पनिशमेंट। और वो कोई पेन ऐसे अगर उभर आता है तो दैट पेन विल नॉट गेट रीड अनलेस यू चेंज द बिलीफ ऑफ द चाइल्ड, अगेंस्ट अनलेस यू डू द कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग फॉर द चाइल्ड। कई बार ये अटेंशन सीकिंग होता है, जैसे मैंने बोला पेन पैम्परिंग फैमिलीज होते हैं। मम्मी को अगर बैक एक है तो 5 दिन वो लेटी रहेगी, घर का सारा काम और कोई करेंगे। इफ द चाइल्ड इज सीइंग दिस, फीलिंग दिस, ही नोज दैट कोई भी पेन में आपको बहुत सारा एस्केप मिलता है, बहुत पैम्परिंग मिलता है, तो द चाइल्ड मे स्टार्ट, इवन इफ दैट पेन इज रियल, थोड़ा पेन अगर सीजनल वायरल इन्फेक्शन का है तो वो पेन बढ़ता जाएगा, चालू ही रहेगा। वो बच्चा उसमें से निकलना नहीं चाहता है क्योंकि उसको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। Sometimes that pain is due to identifying with a very closed person। घर में अगर बड़ी बहन को कोई पीरियड्स का पेन है, वो बहुत सफर कर रही है, तो छोटी बहन को भी होगा, क्योंकि she identifies herself with the elder sister। Sometimes it serves to escape from unwanted situations। ट्यूशन में नहीं जाना चाहता है, एक बार ऐसा हुआ कि पेट दर्द हुआ, नहीं गए, तो दैट विल कंटिन्यू रिपीटिंग, क्योंकि उसका कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस उसको मिलता है। एंड समटाइम्स चिल्ड्रन यूज इट टू टेक कंट्रोल ओवर एडल्ट्स। अगर पापा को ऑफिस नहीं जाने देना है, एक बार ऐसा नहीं हुआ था कि वो नहीं गए थे कुछ पेन की वजह से, तो द चाइल्ड कंटिन्यूस। ये ऐसा नहीं है कि वो मेलिंगरिंग कर रहा है, लेकिन दैट सबकॉन्शियस ड्राइव कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आई कैन कंट्रोल माय पेरेंट्स। ये मिक्स सारे सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस की वजह से वो पेन कुछ उसको देती है गेन, और उसमें से वो बच्चा निकलना नहीं चाहता है। तो वी शुड आइडेंटिफाई कि क्या पर्पस इसका ये पेन से हो रहा है, और उसको हेल्दी वे में वो सिचुएशन डील करना नहीं सिखाएंगे तब तक वो पेन छूटेगा नहीं। तो दिस इज अवर सेकंड स्टेप। उसके बाद हमको बच्चे के क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी हॉबीज है, क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, फियर्स है, वो डिटेल में जानना है। क्योंकि अगर कोई बच्चे को पानी का डर है और आप कोई ऐसे फ्लोटिंग की या पानी की रिवर साइड की कुछ इमेजिनेशन कराएंगे, ही विल बिकम एंशियस।
किसी को फ्लाइंग का डर है, उसको आप कोई फ्लाइंग इन द एयर या मैजिक कारपेट या राइडिंग ऑन द क्लाउड ऐसा कुछ करा देंगे तो ही विल गेट एंशियस। अगर उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, यू क्रिएट इमेजिनेशन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। अगर उसको ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुछ वाटर कलर्स लेके पेन को डाइल्यूट करने की टेक्निक्स यूज करोगे तो ही विल एंजॉय दैट। वो उसमें इजीली ट्रांस इंडक्शन और डीपनिंग इजी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको जाननी है। फिर जाके हम एग्जैक्ट पेन को फोकस करेंगे कि कहाँ पे दुखता है, कैसा दुखता है। और वही जो अवनीश सर ने बोला कि पेन के बदले और शब्द यूज कर सकते। अच्छा बेटा, ये हाथ में डिस्कम्फर्ट होता है, कितना डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा हर्ट होता है, थोड़ा अनईजी लगता है। सो फ्रॉम दैट सिवियरिटी, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इटसेल्फ, दैट सिवियरिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। फिर पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, बर्निंग है, हर्टिंग है, थ्रोबिंग है, या रोटेटिंग कुछ टाइप की है, या हैवीनेस फील होती है, प्रिकिंग है जैसे कांटा चुभता है। तो इससे हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं उसका भी पता चलता है। एंड समटाइम्स वी गेट क्यूज फ्रॉम द चाइल्ड इटसेल्फ। जैसे एक बच्चे को हेडेक होता था, वो बोलता था जैसे बहुत यहाँ पे कुछ प्रेशर फील हो रहा हो। और बेटा क्या करते तो आपको ऐसा लगता कि वो रिलीफ होता? वो बोलता कोई अगर टाइट बेल्ट है उसको लूज कर दूं, ऐसा अगर कोई कर दे तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि रिलीफ लगेगा। तो यू कैन यूज दैट टेक्निक, समथिंग वेरी टाइट इज देयर टाइड अपॉन एंड देन ही इज एबल टू रिलीज दैट। वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो टाइटनेस को। वो यूज करने से इजीली उसको उसका इफेक्ट मिलेगा। So all this work which we need to do before doing any hypnotic sessions for pain, ये सब ऐसा है जैसे सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। आपकी सर्जरी 5 मिनट की भले हो, लेकिन 5 घंटे उसको भूखा रखना, उसके रिपोर्ट्स कराना, उसका बीपी चेक करना, जनरल कंडीशन चेक करना जैसे कंपलसरी है, ऐसे ही कोई भी ट्रांस के सेशन से पहले बच्चे के लिए, हमारे लिए ये सब जानना जरूरी है। Then and then, whatever type of imagination you use, it will work. If you directly go for any hypnotic session with the child, अगर ये सब एक्सप्लोरेशन नहीं किया है, अगर ये सब देखा नहीं है, पेरेंट्स की एंजाइटी रिलीव नहीं की है, बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो नो हिप्नोटिक सेशन इज गोइंग टू वर्क। तो ये प्री सर्जिकल मैनेजमेंट की तरह इसको बहुत अच्छे से देना है। और विथ माई एक्सपीरियंस, मुझे जैसे पहले I got training in 2016 and 17, and अवनीश सर हमारे एक टीचर भी थे। तो एट दैट टाइम आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव। ठीक है, मैं पीडियाट्रिशियन तो हुई, एडोलेसेंट काउंसलिंग भी करती हूँ, अगर हो सका और मेरे से होगा तो मैं ये यूज करूंगी, वरना ठीक है इतना जो है सीखा है वो काफी है। तो दैट टाइम आई हैड दैट एप्रीहेंशन कि बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। एडल्ट का क्या है कि वो आते हैं पॉजिटिव आउटकम का मोटिवेशन लेके, हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे ठीक होना है, मैं इसके लिए पैसे दे रही हूँ। बच्चे का क्या है, वो ऐसा कुछ लेके नहीं आता है, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो बैठेगा कि नहीं चेयर पे वो भी हमको पता नहीं है। तो मुझे अप्रीहेंशन था कि कैसे होगा, लेकिन चलो देखते हैं। Then slowly I started realizing कि pediatric patients are actually good clients, क्योंकि they are used to hypnotic stage। हम बोलते हैं बच्चे आपको पता है आप अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हो तब क्या होता है, बोलता है मैं तो पूरा डूब जाता हूँ, मम्मी ने क्या पूछा वो भी नहीं, बस वही तो करना है हमको। I never use the word hypnosis, I use imagination, role playing, एक्ट आउट, या तो जैसे हम कोई मूवी देखने वाले हैं तो ये सब वर्ड्स का यूज करके दे स्टार्ट हैविंग दैट एंजॉयमेंट, फन एंड थ्रिल। एंड बिफोर एनी सेशन आई प्रॉमिस देम कि जो भी हम करेंगे उसमें सिर्फ बातें करना होगा, ना ही इंजेक्शन होगा, ना ही कुछ गोली होगी, ना ही कुछ रिपोर्ट्स होंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दैट रूम फॉर द सेशन सेपरेटली फ्रॉम द कंसल्टिंग रूम, बिकॉज दे नो कि यहाँ कंसल्टिंग में आएंगे तो यहाँ तो ये सब चीजें हो सकती है,
तो वो अलग रूम है, मतलब वहां पे कुछ अलग चीज से हेल्प होगी. And then with favorite story or favorite imagination, favorite cartoon character, very spontaneously, very creatively we start with some story. और फिर धीरे धीरे करके आप यहाँ पे बैठ के ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हम कोई टीवी में या कोई होम थिएटर में कोई देखने वाले हैं वीडियोस. Slowly they get down to the chair. And what I used to do initially, कि बच्चे बहुत फिजिटी हो जाते हैं, हिलते डुलते हैं, थोड़ा सा भी शुरू करो देन दे स्टार्ट गिगलिंग, आंख खोल दी और ऐसे खी 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 हंसने लगे. तो आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. एंड एट दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं या तो अपनी आंख बंद करके उसको नरेशन देती थी, तो वो थोड़ा बहुत खोल के देख लेते थे और फिर वापस से वो बंद करके शुरू हो जाते थे. या आई यूज टू लुक एट सम अदर पॉइंट, नॉट एट द चाइल्ड. तो उसको ये ना हो कि मैं उनको देख रही हूँ और उसने आंख खोली, ऐसे करा, फिर वापस से हो गया. तो हम अपनी स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इनसे डील करना है. यूजुअली फर्स्ट सेशन इज जस्ट ऑफ अ न्यूट्रल ट्रांस. कोई भी उसको अच्छा लगे ऐसा कोई भी इमेजिनेशन एक्सपीरियंस, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स है या कुछ अचीवमेंट उसको मिली है, कोई अवार्ड सेरेमनी है स्कूल की, ऐसा न्यूट्रल एक्सपीरियंस. एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांस रेटिफिकेशन, सम कन्विंसर्स कि देखो तुम्हारा हाथ हैवी फील हो रहा है, तुम्हारा माइंड कितना स्ट्रांग है, इट हैज कंट्रोल ऑन योर बॉडी पार्ट्स एंड दैट हैवीनेस इज इंड्यूस्ड. वो उसका हाथ थोड़ा नीचे 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 जाएगा और फिर उसको बोलते हैं कि देखो अभी तुम्हारे हाथ की पोजीशन कैसे हो गई, आपका माइंड कितना पावरफुल है, आपको अपने बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है. तो दैट कन्विंसर विल लीव द चाइल्ड, हाँ आई एम नॉट हेल्पलेस, आई हैव मास्टरी ओवर माई बॉडी एंड आई कैन गेन मास्टरी ओवर माई सिम्टम्स ऑल्सो. एंड वो फर्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. मोस्टली सेकंड टाइम द चाइल्ड कम्स विथ चलो आंटी वो चेयर पे लेट के कुछ आप कराओ, आप कराने वाले थे कुछ इमेजिनेशन. एंड दैट वर्क्स कि वो रेडीनेस के साथ आता है, उसको पता है क्या करना है. एंड मोस्टली ड्यूरिंग द सेकंड सेशन वी स्टार्ट डूइंग द वर्क. अगेन दैट वर्क डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. छोटा बच्चा है तो कुछ ऐसा ही इमेजिनेशन, यू आर विजुअलाइजिंग योर ओन टमी ऑन अ टीवी स्क्रीन और देखो वो टमी में जो प्रॉब्लम है, जो टाइट मसल्स हो रहे हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं. तो ही विजुअलाइजेस हिज ओन बॉडी पार्ट्स, दैट कॉजेस डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो एंड डिसोसिएशन ऑल्सो, डिसोसिएशन ऑफ द पेन. एंड मेनी टाइम्स वी यूज अदर टेक्निक्स ऑल्सो, जैसे हमने सीखा है पेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और द चाइल्ड शूट्स दैट पेन. वो अपने वीडियो गेम्स के कोई भी हथियार से, गन से करता है या बो एंड एरो से करता है. और कई बार बच्चे भी नई टेक्निक सिखाते हैं, जैसे एक बच्चे ने मुझे सिखाया कि मैंने तो उसको बबल्स, वो बबल्स उसको अच्छे लगते थे, तो उसने सिखाया कि मैंने वो पेन को सोप में कन्वर्ट कर दिया और सोप को मेल्ट कर दिया और देन आई स्टार्टेड ब्लोइंग द बबल्स. और वो सारे बबल्स अपने आप उड़ रहे थे, फूट रहे थे, और जैसे ही बबल्स फूट रहे थे मेरा पेन कम हो गया. सो चिल्ड्रन टीच अस मेनी थिंग्स and with whatever technique they start feeling comfortable. Ultimately what we do is some distraction, some dissociation, some feeling of having mastery over one's own physiology, some ego strengthening techniques also. क्योंकि वो अगर ड्रामा में अच्छा है तो वो परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई अवार्ड मिल रहा है, वो कोई गेम खेल रहा है तो उसमें वो जीत रहा है. तो this also helps him to ego strengthen his own physiology and mindset also, or gradually he comes out of the suffering and pain. And last, we should not forget the child for to congratulate him for whatever he has achieved. मतलब हम तो एक टूल यूज कर रहे हैं and I am just a facilitator. What result is being brought is by your own brain. So he should be empowered that whatever work he has done, it has been because of his own self. And this is how it works. And instead of the pain mastering over him through many days,
he starts feeling that now I am the master of the pain. और कई बार बच्चे बोलते भी है कि अब घर में किसी को कुछ ऐसा होगा ना, मैं उसको सिखा दूंगा कि कैसे उसको करना है. So there are many positive experiences, and sometimes when the pain is very superficial without any much deeper issues, it works as a magic. एक सेशन में ही बच्चे को ये कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ, अगर पेन हो तो मैं ऐसे अंदर सांस लूंगा, उसको ब्लो आउट कर दूंगा, उसको दूर फेंक दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. बस कुछ डिस्ट्रैक्शन उसको आ गया एंड ही कैन रिलीव दैट पेन. तो समटाइम्स वन सेशन वर्क्स अ वंडर. और पेरेंट्स को भी लगता है कि इतने हम दिन से इतने कंसल्टेंट से मिले थे, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, उसने सीख लिया और बोला कि अब तो मुझे पेन होगा ही नहीं. So sometimes it's like a magic. But when we go in a structured way and actually find out the feelings, thoughts, and beliefs behind the pain and we correct it, it works wonderfully. And उसमें वापस से relapse होने के chances बहुत कम होते हैं. So this is in short about my experience with pain in functional pains in children. Thank you so much, AOH, for giving me this opportunity to converse with my colleagues and fellows. Yes, indeed, if anybody is not talking, I must congratulate Dr. Neema. And yes, we are meeting on the screen after a very long time. Yes, sir. And you have really very well elaborated the whole topic and the experience. And I really feel very proud about the new generations of hypnotherapists, because we started way back. I started it with in year 98 with Palansar. And that time the hypnosis was in its, the infancy. We were only few people talking about it. But as I keep on, attending the meetings, and I see people more and more, using it very efficiently and turning out to be even better therapists than us. We feel proud. So I must congratulate that, you people have been using it very, very nicely. Two things I would say. Pediatric hypnosis. I actually expected you in the conference, but I think you were somehow not there. I was playing a role of ideal mother because my two kids are in 12th and 10th. Okay, And okay. they Correct. had So their you have, prelims during February. yeah, I agree to that. That is a primary role. So because we had a special workshop on pediatric hypnosis in that. So, and you are using it very relevantly. You have elaborated it fantastically, and you are using it also very nicely. And here I would suggest only one or two things. What I use usually is that counseling the parents and telling them sometimes there are memory pains. That whenever the child has experienced some pain which is organic because of some real cause, like sore throat or maybe earache or maybe even the stomach ache, and this memory is already there inside, and whenever there is any kind of low feeling or there is any negative emotion with which the child is overwhelmed or loaded, this kind of pains, they tend to reactivate and they start presenting. So this is actually the fact, and then we have to convince the parents more that this is a realistic pain. At times when you say they are not able to correlate, so I use this word memory pain, and that is more convincing, that it is operating from the memory, so it is more truthful pain, and the child is not faking or not he is feigning anything. Otherwise they start scolding the child that you are doing drama and all that. So you have to protect the child from that, and that works very well. Second is when you are treating pains or any other symptoms, always tell that this symptom may disappear once, but before completely disappearing,
it may actually present itself again once or twice. In my experience, it happens that in the first session, the symptom gets relieved a lot. But maybe after a few days, again, the child presents with same symptom or some other symptom. There is a wandering symptom. Yes, Because of changing the, site of the pain. yeah. Because there is a motive and the secondary gain is there, or whatever it may be, but the site is changed, and you have to tell this beforehand to the parents that aisa hoga, there is a possibility. And as I always say that you have to handle the child and parents separately. So there should be in the session included that you make the child sit outside, talk to the parents, and Separately. yeah, when you are practicing it, always when you are trying to catch the attention of the child, my first question when the parents and child they come, I mentioned it in the workshop, but I use it very frequently since you are a pediatrician. I am telling it again that whenever the child and parents are presenting you for this kind of functional issues, not only pain, there are a lot many other conditions, but always ask the mother that tell me good things about your child. The first question is प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं पूछना है. हमेशा मदर को ये पूछो कि ये बच्चे के बारे में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताओ. हाँ, how good your child is, describe it. And most of the time mothers are bold, clean bold. They have come up with preparing all the problem list of problems. ये बच्चा सुनता नहीं है, शैतानी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है स्कूल में. और उसके आप उससे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछते हो, तब mother is sometimes not able to tell it so easily, and the child feels very happy कि ये मेरे बारे में कुछ अच्छा पूछ रहे हैं. So that is how you connect to the child and you straight away penetrate into the mind of the child. So there are some such short techniques of how to instantly build the rapport with the child. Okay, so this is what we discussed in the pediatric hypnotic workshop. But there are many such. But since you are practicing it, I thought it is it will Yes, help sir. you. So We always learn from each other and continue to learn. So surely we will connect in this aspect someday. But really, it is a nice session, and thank you for this wonderful presentation. Thank you. Yeah, Thank anyone you, else? sir. And thank you, Dr. Nima, for this beautiful presentation. And do we have any other questions directed towards Dr. Nima or Dr. Pankhuri? There is one request from Dr. Pankhuri that if any questions are there, one can contact her directly or through our conference group. Thank you. I see Dr. Dayal's hand raised. To make an observation, with adolescents, often they are in denial or they are kind of refusing to answer your question any straight way. They will, lead you up and down often. And I found with that group, idiomotor signals work very well. And one can, whether there's conflict, and often a very dynamic that is ignored or we don't think of also is self-punishment. That the pain, chronic pain in, they've done something which they're feeling guilty about. And if you ask about that, I have not seen many people exploring that dynamic. And sometimes even in 1 or 2 sessions, you can get that. So, and you can make out that it's a genuine idiomotor signal because it has, it's a very slow and, the finger movements are not smooth and fluid, but they're slow and it halts and goes slowly. So it's a useful thing. This is for everyone else. That's what I wanted to add to your wonderful presentation. It was really wonderful. Thank you so much. Thank you so much, sir.
Your words of encouragement and your wisdom means a lot to us. Thank you for constantly guiding us. We have Dr. Veena. Dr. Veena, do you want to add any observations? I would like to congratulate both the presenters. Fabulous presentation and good work going on. Really, this is the kind of work that needs documentation. So I would also request the presenters to write and submit for the first newsletter, especially on the adolescent and pediatric pain issues. It will be really helpful. Also, adding to what Dr. Dayal was saying, in my observation, when a child grows up with the idea of punishment to oneself, many a times it also results into the perception of religion as something which is very punitive. And the discomfort that is there, completely accepted as it is, and the obsession that gets built up around it. The formation of obsessive thinking, which is coming from the idea of punishment, is very, very evident in childhood, adolescent and pre-adolescent years. Just wanted to add that. Thank you very much. Very good presentations. Thank you, Dr. Veena. So with this, we come to the end of today's presentations, and we'll all meet very soon next month, which is also going to be our Foundation Day month, and we'll have some big announcements to make. We'll keep making the announcements in the group. And lovely audience, thank you everyone for being present. See you in the next clinical meet. Good evening, everyone. Thank you.